Good morning, everyone. My name is Neville Seth, and I'm a Company Secretary and Compliance Officer of the company. Welcome all the members and the dignitaries to the 39th Annual General Meeting of Charter Capital and Investment Limited. This meeting is being conducted through video conferencing or other audiovisual means facility. Today, we have with us our respected Mr. Mohit Khericha, Managing Director of the company. He is also Chairman of CSR Committee. Ms. Sophia Khericha, Director of the company. Mr. Naval Kishore Gupta, Independent Director of the company. He is also Chairman of Audit Committee and Stakeholder Relationship Committee. Mr. Zohar Rangwala, Independent Director of the company. Mr. Javed Syed, Chief Financial Officer of the company. Mr. Fanil Shah from FP and Associates, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the company. Mr. Hussain Botwala from Hussain Botwala and Associates, Practicing Company Secretary, Secretary Auditor of the company. Mr. D.A. Rupawala from D.A. Rupawala and Associates, Practicing Chartered Accountant and Scrutinizer. In the absence of permanent chairman on the board, all the present directors have elected Mr. Mohit Khericha to be the chairman of this meeting. As elected unanimously, I request Mr. Mohit Khericha to chair the meeting. Members attending meeting through video conferencing shall be counted for the purpose of quorum. Since the requisite quorum of member is present as per Section 103 of Companies Act 2013, with the consent of Chairman Sir, I declare the meeting to be in order. The facility to join this meeting through video conferencing or other audiovisual means is being available for members on first come first served basis. All members who have joined the meeting are by default placed on mute mode by the host to avoid any disturbance arising from the background noise and to ensure smooth and seamless conduct of the meeting. I would like to mention that as per Companies Act 2013 and SEBI listing regulations, which provides for electronic voting, the company had provided its members the facility to cast their vote through remote e-voting system administered by NSDL. The remote e-voting commenced at 9 a.m. on Thursday, September 18, 2025, and concluded at 5 p.m. on Sunday, September 21st, 2025. Members who have not voted through remote e-voting can cast their vote through e-voting facility during AGM. The e-voting facility has been enabled for shareholders to vote during the meeting, and the same shall be available till 15 minutes after the closure of meeting. Mr. D.A. Rupawala, proprietor of D.A. Rupawala and Associates, Practicing Chartered Accountants, has been appointed as a scrutinizer to scrutinize the vote casted during the meeting and the votes casted through remote e-voting platform of NSDL. During the course of AGM, shareholders facing technical issues may kindly contact the helpline number provided in the notice convening this AGM. Since there is no physical attendance of the members, the requirement of appointing proxy is not applicable. I would request the Chairman Sir to brief the shareholders about the performance of the company. Over to you, Chairman Sir. Sir, please unmute yourself. Good morning, dear shareholder. I once again welcome you all at 39th AGM of the company. I will brief you about the performance of company during the financial year 24-25. Can you hear? During the year under review, total income of the company increased for 796.32 lakhs during the previous year to 1175.63 lakhs during the current year. The profit after tax decreased from the profit of 554.33 lakhs during the previous year to profit of 538.51 lakhs during the current year, mainly due to increase in employee costs, tax expenses and other expenses. The board of the directors expect the situation to improve further in the coming years. Now I request Company Secretary to take this meeting forward. Thank you, Chairman Sir. Since the AGM is being held through video conference or other audiovisual means, the resolution mentioned in the notice convening this AGM have already been put to vote through remote e-voting. There will be no proposing and seconding of resolution. The following item of business is as set out in the notice convening the AGM for members' consideration and approval. Resolution number 1, to receive, consider and adopt the audited balance sheet as on March 31st, 2025 and the profit and loss account for the year ended on that date, and the report of directors and auditors thereon, which is an ordinary resolution. Resolution number 2, to appoint a director in place of Mrs. Sophia Khericha, who retired by rotation and being eligible has herself for reappointment, which is an ordinary resolution. Resolution number 3, to appoint Mr.
Hussain Botwala and Associates practicing company secretaries as a secretarial auditor for a term of 5 consecutive years and fix his remuneration, which is an ordinary resolution. Since the notice has already been circulated to all the members, I take the notice convening the meeting as read. Moving forward, the dais is open for speaker shareholders and request the admin to allow speaker shareholder one by one to interact with the board. Over to you, admin. Mr. Neville, one speaker is there, Rishikesh Chopra. Is he there in the meeting? Yes, he is there. So can you request him to unmute and ask the question? Okay. Mr. Rishikesh Chopra? Can you hear me? Yes, sir. Yeah, we can hear you. हाँ जी Mohib Torecha साहब and Sophia Torecha and other respected board of directors. Sir, we are around 10-year-old shareholders and with all due regards to your hard work, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कंपनी में क्या करना चाहते हैं, मतलब वेयर यू सी द कंपनी आफ्टर 5 years. आपके सामने छोटे छोटे गुजरात के ये मर्चेंट बैंकर्स आए, ऑपरेटर बन गए, फिर उसके बाद लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग द फाइनेंसिंग. तो व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल? आप अपनी एनुअल रिपोर्ट देखिए. आप मर्चेंट बैंकिंग का काम कैसे करेंगे अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट बिलो एवरेज है? आपकी छोटी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट अगर मोतीलाल ओसवाल से अच्छी होगी तभी तो लोग आपको जानेंगे, करेंगे. Once, if you are a listed company, you cannot explain to the people that once the baby is born, you need to take care of her education, her child. Similarly, you have got a listed company. You must respect it. You must respect this girl child what you have born. Maybe at any circumstances आपने 90s में फंड रेजिंग की और जब भी फंड रेजिंग की उस टाइम आपको पैसा चाहिए था और हम जैसे भरोसे वाले लोगों ने आपको पैसा दिया, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड डू एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. आज भी मैं देख रहा हूँ 90% शेयर इज देयर विद यू, ऑफिशियली अनऑफिशियली मिला के, या फिर जो बड़े शेयर होल्डर आपके दोस्त यार हैं वो मिला के. देर इज ओनली 7-8% 9% शेयर होल्डर विच आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो मतलब मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि क्लाइंट आपके पास बिजनेस करने क्यों आएगा. आपके पास 152 करोड़ कितने की एसेट्स पड़ी हैं, कुछ वेरी गुड करंट एसेट्स आर देयर इन फाइनेंशियल दिस थिंग. तो व्हाई डोंट यू लिक्विडेट एंड गिव इट वन टाइम डिविडेंड और बोनस टू द शेयर होल्डर्स? और वो आपके पास भी घर पे आएगा, मतलब केवल कंपनी में नहीं रहेगा. और आप लोग क्या करते हैं इस धंधे में, नो बडी कैन अंडरस्टैंड दैट. आपकी वेबसाइट चलती नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी को लेटर लिखो तो वो बेचता नहीं है. आपने स्वॉट एनालिसिस लिखा है, आपकी कंपनी सेक्रेटरी ने या सीएफओ ने, आई वांटेड टू मतलब लर्न देयर एजुकेशन बैकग्राउंड कि उन्होंने स्वॉट एनालिसिस ऑफ अ मर्चेंट बैंकिंग लिस्टेड कंपनी. मतलब मैं सिंगापुर में बैठा हूँ अभी और मतलब मैं ऐसे सीएफओ को चपरासी ना रखूं अपने यहाँ जो स्वॉट एनालिसिस ऐसा लिखा है. आई एम सॉरी टू से लाइक दैट. मतलब यू आर व्हाट यू आर शोइंग टू द वर्ल्ड बाय दिस एनुअल रिपोर्ट. आई एम सॉरी टू से. आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हैं? आपके पास बस 85% शेयर है. सर आपने मतलब अपनी बात कह ली, अब मैं अपनी बात कर लूं. हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा आप बोल लीजिए. मैं थोड़ी सी बात और कहना चाह रहा था, क्योंकि या तो आप डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं आपकी क्या आकांक्षा है लॉन्ग टर्म में, ना आपने इसमें लिक्विडिटी क्रिएट की. आप स्टॉक को स्प्लिट कर दीजिए ताकि कोई बड़ा माल बेचना चाहे तो बेच सके, जो बड़ा माल खरीदना चाहे खरीद सके. आप लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैसेजिंग जो है टू द होल वर्ल्ड एट दिस एज मीन्स यू, मैं आपकी शक्ल से देख पा रहा हूँ यू मस्ट बी 65+. मतलब आप दुनिया को क्या देके जाएंगे? कौन से अच्छे शब्द हैं, कौन से 10 बड़े शेयर होल्डर होंगे जो आपकी लास्ट प्रेयर में आएंगे? आप ये सोचिए. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हम सब ने पैसा कमाना है. फॉर मी योर स्टेक इज जस्ट नॉट इवन 0.001% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो. यूर अंडरस्टैंडिंग? सो मतलब फिर भी मतलब बस वेल विशर आई सर, कैन से कि आप मतलब हो गया जब भी सर. आप अगली बार एनुअल रिपोर्ट लिखिए वो तरीके से लिखिए कि लगे कि किसी ये पढ़े लिखे मर्चेंट बैंकर ने लिखी है या इनकी टीम है जो तरीके वाला काम करती है. अगर कल को मैं भी फंड रेजिंग करना चाहता हूँ इंडिया में किसी अपनी प्राइवेट इक्विटी कंपनी की, तो मैं उसको आपको सजेस्ट करूँ? मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा. आपको खुद से अपनी एनुअल रिपोर्ट्स सर क्या आप अपनी वेबसाइट देखिए. सर आपका हो गया, अभी मैं बता दूं. हाँ हाँ, चलो आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा. अच्छा देखिए, पूरे गुजरात राजस्थान में मैं अकेला मर्चेंट बैंकर था. जैसे आप बोले ना अभी
कि ये अभी मर्चेंट बैंकर छोटे छोटे हो गए, ऑपरेटर हो गए, जो आपने तो दूसरा लफ्ज यूज किया ने, वो मुझे करना नहीं है, इसलिए मुझे मर्चेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं। आज की नहीं डेट नहीं में मर्चेंट बैंकिंग गलत काम करे बगैर हो ही नहीं सकता। वो अगर आप इतना सारा जानते हो तो ये भी समझ लो कि नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर देखो, अदब की मैं गालिब ने बोला था अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। अगर आप देसी घी हैं तो लोग आपको खरीदेंगे और 1400 रुपए किलो खरीदेंगे, और हिंदुस्तान में खरीद रहे हैं लोग। सर आप ये आप बात मानते हैं? अगर अभी आप अच्छे हैं, आप साफ सुथरा काम कर रहे हैं, बट आप अपनी प्रेजेंटेशन तो सही कीजिए ना। आपकी प्रेजेंटेशन टू द होल वर्ल्ड, योर वेबसाइट, योर दिस थिंग, इट डजंट लुक लाइक दैट यू आर डूइंग अ ऑर्गेनिक गुड बिजनेस। सर मैं मर्चेंट बैंकिंग कर ही नहीं रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ अभी। आप क्या कर रहे हैं फिर? मैं इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मैंने कोई काम ही नहीं लिया। तो यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स नाउ इन? तो नहीं करना सर। तो ये इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स तो दे दीजिए कम से कम, कि लिखी आपकी हुई है इन्वेस्टमेंट्स ना में सर, क्या क्या। आपको क्या है, पूरा शेयर होल्डिंग जो है वो लिखा हुआ है। पैसा पब्लिक लिस्टेड कंपनी में पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है, लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है इसके बारे में तो लिखी है ना उसमें एनुअल रिपोर्ट में, कि आप इसको कैसे सर अभी बेचेंगे, कब अभी ये पैसे आएंगे, कैसे होगा सर? आप थोड़ा एक्सप्लेन तो। मैंने आज तो शेयर नहीं लिए, मैंने 12 साल से शेयर लिए हैं आपके। सर आपने 12 साल में शेयर लिए, 10 रुपए का शेयर लिया होगा, 300 रुपये का शेयर है। आप ऐसे ही बोलते जा रहे हो लोगों के, मैंने नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप देसी घी हो, मैंने तभी तो रखा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ आई एम रिगार्डिंग यू, हाँ तो यू आर नॉट मेरा गेटिंग। खत्म हो गया। आप अपने मन में आए ऐसे बोलते जा रहे हो, कोई बात नहीं बनती। मैं मोतीलाल ओसवाल यहाँ अहमदाबाद में बैठ के नहीं हो सकता, इतनी तो आपको पता हो। आप सिंगापुर बैठे हो। वो ये जो छोटे मर्चेंट तो बैंकर जो आपकी कर रहे नेक्स्ट हैं जन। ने, तो वो जो कर रहे हैं वो आपको इंटरनल अगर कहानी पता हो ने तो पता है। माई एज इज 74। मैंने ऐसे 4 राउंड देख लिए, मुझे ये झमेले में पड़ना नहीं। अच्छा यहाँ सेबी का नोटिस आता है ना, आपके पास 10 शेयर है, यहाँ सेबी का नोटिस आए तो भागते हो जाते। सर, अरे बात ये सभी मर्चेंट की। बैंकिंग फील्ड में 32 साल गुजार दिए सर। आज की डेट में यहाँ आपको जो सेबी का विजिलेंस होता है ना, वो बाल की खाल निकाल रहे थे, आपको पता हो तो। जेएम को, मोतीलाल ओसवाल को, एक्सिस को, सबको करोड़ों की पेनल्टी लग चुकी है। और मुझे ये झमेले में पड़ना नहीं। अच्छा, आपको नहीं पढ़ना तो आप अपने एज अ इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, आप ये तो बता दीजिए आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है? आप अभी मैं क्या इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ सर, जो पैसा है कंपनी में, मैं 1 रुपया नहीं ले गया। नहीं, मैं तो तय ही नहीं रहा, आपने पैसा निकाला कंपनी से। नहीं तो मैं- कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो शेयर का भाव बढ़ रहा है सर, क्या फर्क पड़ता है? आप बोनस की बात करते हो, इतने पढ़े लिखे आदमी हो। 100 रुपये के 2 छूटे आएंगे तो क्या 150 हो जाएगा क्या? 50 की 2 नोट आएगी और क्या होगा? तो आप स्प्लिट कर दीजिए, कम से कम तो लिक्विडिटी तो स्प्लिट करने क्रिएट से कीजिए। भी क्या फायदा सर? आप 100 का 10-10 रुपए की नोट लो, जेब में 10 नोट होगी, और क्या फायदा? आप करके तो देखिए ना क्या फायदा होगा। आप अरे सर हमारी मुझे रिक्वेस्ट। मुझे तो पता है सर, मैंने अपनी जिंदगी मर्चेंट बैंकिंग में, शेयर मार्केट में निकाले, 40 साल हो गए। नो, आई एग्री एंड रिगार्ड योर एक्सपीरियंस सर, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स फॉर दैट, बट मतलब सर ऐसा है, आई सर आई सी, इफ आई टेल ये यू, आप जैसे। यू मिस्टर मिस्टर मोहित टुरेचा साहब, आप भी जानते हैं द ट्रू वैल्यू इज नॉट 250 रुपीज। तो दिस नहीं इज है नॉट तो मैं रिफ्लेक्टिंग कहाँ इन द। बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं बोला ना कि ट्रू वैल्यू 250 है। हाँ, ट्रू वैल्यू इज 4 फिगर। हाँ इवन यू नो दैट वो फ्रॉम मोहित। आप 4 फिगर जो बोला, जिसको जो बोलना है बोले सर, क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो मैं तो बेच नहीं नहीं, रहा, मैंने नहीं रहा, फिर मेरे को क्या फर्क पड़ता है? आप एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते जा रहे हो मैं कि एलिगेशन नहीं मेरे लगा पास रहा तो सर। शेयर है। मैं तो क्या, आपने लिखा है कि हम मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस है हमारे पास, कैटेगरी है वो उसमें। तो है ही, पर सर मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ नहीं है। पर काम करना थोड़ी जरूरी है, ऐसे तो इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस बहुत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी है, वो भी कभी काम नहीं करता, क्या करेंगे? चलो, आप मुझे 3 साल में बता दीजिए कि अब आपका ईपीएस कितना बढ़ सकता है, जिस आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपने की, आपने अपनी आप कैसे इन्वेस्टमेंट मार्केट फिलॉसफी सोची चलेगा? होगी ना। आप है ना, इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। आपको पता लगेगा कि पैसा कहाँ लगा है और कितना ग्रो हो सकता है। सर, मैं कैसे पता लगूंगा छोटे छोटे अरे शेयरों में बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ना सर कि कहाँ पैसा लगा है। मैं कैपिटल मार्केट में ही डील करता हूँ, बाकी तो कहीं पैसा है नहीं। अच्छा अच्छा, आपका ईमेल, आपकी कंपनी सेक्रेटरी को बोलिए अपना ईमेल आईडी और वो भेज दीजिए। लेट्स नॉट डू द हाँ कन्वर्सेशन ऑन ठीक है, दिस आप पब्लिक प्लेटफॉर्म। आपको भेज देंगे, ठीक है। हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।
The results would be announced within 2 working days of conclusion of this AGM, and the same will be intimated to the stock exchange and uploaded on the website of the company and NSDL. The remote e-voting will remain open for next 15 minutes to enable shareholders to cast their votes. I hereby confirm that the requisite quorum was present throughout this meeting. I would like to thank all the shareholders for sparing their valuable time for this meeting. I also would like to thank you all the directors, chief financial officer, auditors, and scrutinizer for attending this meeting. With this, I declare the meeting as closed. Thank you so much. Thank you.